Hi dear MCOM third semester student, I am Dr. A.K. Mansoori again come before you through video lectures, and no doubt the topic is deduction under section 80C to 80U. In our earlier lectures, I have explained what actually are the meaning of deduction under section 80C to 80U, because in nutshell, if any taxpayer want to reduce their tax liability or the taxable income, then there is a legally provisions made by central government if he or she can invest in different way so that their taxable income can be reduced legally, and the way is called the deduction under section 80C to 80U, which is in the chapter 6A. In earlier lectures I have already explained the section under section 80C, 80CCC and 80D. Now for your ready reference, I can brief the under section 80C, an individual taxpayer can investment in saving like a LIC, house loan, principal's amount, the tuition fee, PPF, GPF, and there are numbers of items, near about 19 to 21 items are there which are given in the notes. So therefore you read carefully. But the basic rule is that under section 80C, the total amount would not be more than 1,50,000. Hence the simple rule is that under section 80C, the deduction can be availed the actual investment or maximum rupees 1,50,000, whichever is less. Then the 80CCC, it is an additional benefit under section 80C if an individual taxpayer can investment rupees 50,000 in the national पेंशन सर्विस, जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स है उसमें यदि वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलता है. अदरवाइज अंडर 80C इज द लिमिट 1,50,000. Then I had explained the 80D, that is related with medical insurance, and particularly I again remember you that the life insurance premium is a part of 80C, whereas the medical insurance premium is a part of 80D. So under section 80D there is a two bifurcation. One is for self, wife and children, and the second bifurcation is for parents. So under the self categories, an investor can invest medical insurance premium rupees 25, 25, 50. It is depend on age. If the age of first category individuals are below 60, then the amount would be 25,000, and if the age is more than 60, the medical insurance premium is allowed for a deduction of rupees 50,000. The same process is for parents. If the parents are under 60 of age, then 25,000, and if it is more than 60, it is 50. I had already explained in detail. Now today's lectures we move away. Next, 80D. Now dear student, this 80D, the 80D is available as a deduction for treatment of physically handicapped dependent. If a taxpayer have any relatives which is dependent on him, but he or she is physically dependent on him, that time the taxpayer can spend the amount on his or her medical treatment or rehabilitation. यदि कोई टैक्स पेयर का कोई भी रिश्तेदार जो उस पर डिपेंडेंट है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उस व्यक्ति की या तो देखरेख करने के लिए या उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यदि असेसी कुछ एक्सपेंडिचर करता है, तो वो एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत उसको डिडक्शंस अलाउड है. और यहाँ पर रूल्स है. कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी एक व्यक्ति जो टैक्स पेई है, जो असेसर है, उसके मम्मी, पापा, भाई, बहन, लड़का या और भी कोई रिश्तेदार, बशर्ते वो इस पर डिपेंड है, इसके ऊपर में आश्रित है. यदि वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, कई होते हैं ना घर में अपने जो फिजिकली इधर उधर मूव नहीं करते. अब यदि आप मान लो
मियाँ बीवी दोनों सर्विस में, उसके पिताजी बीमार है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कहीं इधर उधर हिल नहीं सकते, तो दो ही रास्ता है, या तो मियाँ बीवी में से किसी एक को अपने घर में रहना होगा। अब मान के चलो आज के ज़माने के हिसाब से दोनों सर्विस करते हैं, तो वो जो बुजुर्ग है बेचारे, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो क्या करेंगे? वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनकी देखरेख के लिए यदि आपने कोई वर्कर्स रखा है, नर्स रखा है, डॉक्टर रखा है, कंप्यूटर रखा है, तो उसका एक्सपेंडिचर या आप उन पे जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, ये सब खर्चा अंडर सेक्शन डी आपको डिडक्शन के लिए अलाउड रहता है। बट यहाँ पर एक छोटा सा रूल्स है, और रूल्स है कि जो व्यक्ति फिजिकली डिपेंडेंट है वो है कितने परसेंट? If the physically handicapped person is physically handicapped 40% और मोर, यानी उसकी जो अपंगता है, शारीरिक विकृति है, मान लो पैरालिसिस है, या टांग टूटी हुई है, या हाथ टूटा है, व्हाटएवर इट मे बी, या दिमाग से गए हुए हैं, दोनों बातें इसमें आती है। कई मेंटली डिसऑर्डर भी होते हैं, कुछ लोग मेंटली डिसऑर्डर पूरे होते हैं, कुछ पार्टली होते हैं, कुछ काम पूर्ति होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल्स बना दिया कि यदि 40% से कम आपका अपंगत्व है, इफ योर डिपेंडेंट इज physically and mentally disordered but less than 40%, then no deduction will be allowed. यदि 40% से कम है तो आपको कोई डिडक्शन उसमें मिलेगा नहीं। लेकिन यदि डिसेबिलिटी इस 40% से ज्यादा है बट 80% से लेस है, इसका मतलब 40 से 80 के बीच में यदि आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तब आपको 75,000 रुपीज आउटराइट डिडक्शंस मिलता है। आपने रिहेबिलिटेशन या मेडिकल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा किया इसका कोई मायने नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन पर खर्चा नहीं करना होगा, बिकॉज दिस क्लॉज इज अवेलेबल। लुक हियर द ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ तीन बातों पर आपको फोकस करनी है। Anybody should be a physically or mentally disabled, कोई तो भी एक physically या mentally disorder होना चाहिए। Number 2, he or she should be dependent on him, जो मेडिकल जो अपंग है, जो physically और mentally disorder है, वो आप पर आश्रित होना चाहिए। दो बात हो गई। And third, you must spend some amount on his or her medical treatment or rehabilitation। और तीसरी बात यह है कि आपको उस सज्जन के ऊपर किसी न किसी प्रकार का खर्चा या देखरेख पर एक्सपेंडिचर करना ही होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट ने रूल इसीलिए बनाया, नहीं तो क्या होता है कि लोग टैक्स को बचत करने के लिए अपने अच्छे खासे माता पिता को बीमार बना देते हैं और गवर्नमेंट को मूर्ख बनाते हुए कि भी मेरा पिताजी तो फिजिकली गॉन केस हो गया है और मैंने उसके ऊपर में एक्सपेंडिचर किया, दो मुझे 1.25 लाख की छूट। ये वाहियातपना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो डिपेंडेंट है वो 40% या 80% डिसेबल होना नंबर 1, वो आप पर डिपेंडेंट होना नंबर 2, और ये 2 से भी तीसरी बड़ी बात, आपने उस पर खर्च करना चाहिए, आपको उसका प्रूफ देना होगा। हाँ, खर्चा कितना किया है ये मायने नहीं रखता है। आप 10,000 करो चाहे 1 करोड़ करो, आपको जो डिडक्शंस मिलेगा वो डिडक्शन सिर्फ 2 प्रकार का मिलेगा। इफ दिस डिपेंडेंट्स आर फिजिकली और मेंटली डिसऑर्डर 40% or more than 40% but less than 80%, then deductions will avail up to ₹75. And if the physically or mentally disability is more than 80%, then the amount will be applicable for deduction is 1,25,000। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, 80DD में डिडक्शन कितना मिलेगा? या तो 75,000 या 1,25,000। 75,000 का जब फिजिकली डिसेबल पर्सन 40% से 80% के बीच में है, मतलब पार्टली डिसेबल्ड है, और यदि पर्सन मोर देन 80% मतलब थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस मारा है, केवल पैर पे मारा, बाकी सब कुछ ठीक है, मतलब वो थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, दैट इज पार्टली। आप उसकी देखरेख कर रहे हैं, आया रखे, बाई रखे, नौकर रखे, मेडिकल खर्चा कर रहे हैं, चाहे 5 रुपए क्यों ना उसको दे रहे हो, बट एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, आपको डिडक्शन मिलेगा 75 का। और यदि वो बेचारा जो अपंग जो आप पर आश्रित है वो कुछ भी मूव कर ही नहीं सकता,
मेंटली पूरी तरह से कौन है, वो अपने कपड़े भी अपने हाथ से नहीं पहन सकता, अपना खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता, मतलब वो टोटली लाचार है। तब जब आप उसको खर्च करते हैं उस समय आपको डिडक्शन मिलता है 1,25,000। टेक्निकली गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी इसीलिए दी है कि यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम एज वेल एज यू स्पेंड दिस अमाउंट नॉट फॉर लग्जरी बट इट इज फॉर द नोबल कॉज ऑफ योर पेरेंट। Now we come to under section 80DD. Now look here, many a time the student confuse the 80DD and 80DB. Therefore you please remember 80DD physical handicap, 80DB chronic disease. छोटे छोटे फंडे टैक्स में होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। शारीरिक अपंगता 80DD, गंभीर बीमारी 80DB। ना अब इसमें क्या है, यहाँ पर 40%, 50% मेंटली डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड का क्लास था। अंडर सेक्शन 80DD द हेडिंग सेज इट इज डिडक्शन अलाउड टू assessee if assessees pay the medical expenditure made the medical treatment of chronic disease upon dependent, again dependent, उसकी मम्मी पापा लड़का लड़की भाई जो भी लीगली उस पर आश्रित है। यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यहाँ पर मलेरिया डेंगू वेंगू नहीं है, अब मुझे देखना होगा कि गवर्नमेंट की नई लिस्ट में कोविड कोरोना आया है कि नहीं आया है, देयरफॉर आई कैन नॉट से, बट बेसिकली बहुत गंभीर बीमारी एड्स है, कैंसर है, वो जिसमें रक्त की कमी हो जाती है पूरी यानी बेचारे को रोज रक्त देना पड़ता है, ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं। यदि उन बीमारियों में से कोई भी आपका आश्रित पीड़ित है और आप उसके ऊपर में मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यहां पर भी 3 बात है। कोई ना कोई बीमार होना चाहिए, नंबर 1, वो आप पर आश्रित होना चाहिए, नंबर 2, और आप उस पर खर्चा करने चाहिए, नंबर 3। लेकिन ये थोड़ा कड़क क्लॉज है, यहां पर आपको आसानी से डिडक्शन मिल रहा था, यहां पर आसानी से डिडक्शन इसलिए मिलेगा बिकॉज यहां पर रूल्स है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर और maximum limit whichever is less will avail for deduction। और अब ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये भी 2 प्रकार की है, इसमें 40,000 तक डिडक्शंस है और ₹1 लाख तक डिडक्शंस। नाउ आप बोले सर इसमें भी यहाँ एज फैक्टर्स है, यहाँ एज फैक्टर नहीं था, यहाँ पर डिसेबिलिटी का परसेंटेज था। 40% between 40 and 80% disabled, 75, more than 80%, 125। Here chronic बीमारी कितने परसेंट है, 5, 10, 20, 25, 30, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधा ये जो chronic disease से जो डिपेंडेंट आपका पीड़ित है, ये यदि 60 साल से कम उम्र का है, तब आपको either medical expenditure or maximum limit is 40,000, whichever is less will be available for deduction. If suppose your son is suffering from a chronic disease, the son's age is 30, you make the expenditure 60,000, but you cannot avail the deduction up to 60,000 because the age of your son is less than 60, hence the maximum ceiling is there 40,000। तो आपने 60,000 का खर्चा भले किया है, लेकिन आपको डिडक्शन 40,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन यदि यही 60,000 का खर्चा आप अपने पिताजी के लिए करते हैं और उनकी एज 60 साल से मान लो ऊपर है, तब आपको पूरा 60 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए। तो यह 2 बात ख्याल रखनी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। मतलब एक लड़के का एग्जांपल दिया था कि उसकी उम्र 30 साल है, वो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित है, आपने 60,000 का खर्चा किया, उम्र 60 से कम है, 40,000 के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने पापा का खर्चा किया, पापा 60 के ऊपर है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन आपने खर्चा 1,20,000 किया है, तब 1,20,000 किया तो आपको खर्चा 1,20 नहीं 1 लाख तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ 2 बात याद रखनी है, 40,000, 1 lakhs, and both will compare with medical expenditure. In any case
If the suffering person is below the age of 40, no deduction will be allowed more than 40,000. And if the suffering person is above the age of 60%, the deductions will not allow more than 1 lakh. It can be less. अब दोनों में देखो, मैं आपको बार बार 80DD और 80DD का कंपेयर क्यों बता रहा हूं? यहां पर कंपेरिजन अमाउंट नहीं है. It is outright 75 and 125. Here is not outright 40 and 1 lakh. It will be compared with medical treatment. Medical treatment are essential here and here also. Both the place, the person should be dependent on you, and you must spend the amount. Okay. Now we come to 80E. If somebody you say, sir, there is a 80G, 80GG, that we will consider separately, because that is not directly related, because there is some provisions also. Hence, मैं जितनी भी 80C to 80U आपके सिलेबस में उसके 3-4 लेक्चर्स लूंगा. आज मैं आपको जो क्लास समझा रहा हूँ, पहले उसको आपको अच्छे से समझिए. क्योंकि 80G का क्लास ये डोनेशन का है, और डोनेशन के अपने 4 अलग अलग पॉइंट हैं. तो कुछ क्लास में पहले सीधे करवा दे रहा हूँ जो आसान है. उसके बाद में 80G, 80GG, 80RRB, 80QQB, 80TTA ये भी है. एक वीडियो लेक्चर्स में ये सारी चीजें आएगी नहीं. Therefore you follow the video lectures, read my notes which I have already circulated to you, and then we will discuss. But be sincere. If you are not in a position to read the notes, you cannot solve the problem, because it's as well as related with practical practice as well as related with theoretical knowledge. Now we come to 80E. 80E is very much clear. It is available for interest on loan for higher education of an assessee, or here also dependent, but it is restricted dependent. His mother, father, son and daughter, if are pursuing for higher education and you are not in a position to spend the amount for his or her study, that time you borrowed the loan from any nationalized bank, not from any other brokers. आप अपने लोकल मालगुजार या साहूकार से यदि लोन लेते हैं और आप बोल रहे हैं कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया और उस पर ब्याज दे रहा हूं, तो भी सर मुझे यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर है नहीं. आपको अपने या अपने लड़कों के उच्च शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन, सर कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉर्मली बीकॉम पार्ट 1 मान के चलो, ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. जब हायर एजुकेशन बोल रहा हूँ तो प्राइमरी और मिडिल उसमें आता नहीं. तो हायर एजुकेशन के लिए आप सर कितना कर्जा ले सकते हैं? कितना भी ले सकते हैं. सर ब्याज कितना अलाउड है? कितना भी. यहाँ पर अमाउंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि ये छूट आपको 8 साल मिलेगी. आपको जिंदगी भर 80E का छूट मिलने वाला नहीं है. नहीं तो आप बूढ़े भी हो गए, दे कंटिन्यू पढ़ते जा रहे, हर बार हायर एजुकेशन, एमफिल किया, पीएचडी किया, डिलीट किया, डबल डिलीट, ट्रिपल डिलीट, देन लोन लेते जा रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है. आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन वन टाइम ले लो. लेना है 1 लाख के बजाय 1 करोड़ ले डालो, और उसका जो ब्याज हो रहा है कितना ही ब्याज हो, अब आपका ब्याज कितना ही होगा, मतलब अब गवर्नमेंट को मूर्ख मत बनाना. नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, उनकी जितनी इनकम होती है वो पूरी इस क्लास में डाल के बोलते हैं सर मैंने इतने करोड़ का ब्याज ये लोन लिया था और उसके ऊपर में मेरा 10 लाख रुपया ब्याज का चले गया. रूल के हिसाब से तो छूट मिलेंगी. तो बोलेगा इनकम कितनी थी? 8 लाख, ब्याज कितना दिया? 10 लाख. हाउ इज इट पॉसिबल? तो कई जगह पे मूर्ख बनाने की बात होती है. आप उस दायरे से बाहर निकलिए. सिंपल वर्ड याद रखिए, आपने या आपने अपने लड़के या लड़की के हायर एजुकेशन के लिए यदि नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लिया है या जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे लोन लिया है, तब उसका ब्याज, लोन नहीं. कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को कि लोन का रीपेमेंट किया सर वो भी डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. आपको एजुकेशन लोन का रीपेमेंट डिडक्शन नहीं है. लोन पर ब्याज डिडक्शन है और वो ब्याज की कोई लिमिट नहीं है. सिर्फ कंडीशन यही है कि वो ब्याज आप 8 साल तक छूट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. ओके, यहाँ कुछ भी ज्यादा समझाने लायक है नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ अमाउंट की सीलिंग है, ना परसेंटेज की सीलिंग है, ना एज की सीलिंग है. सीलिंग सिर्फ यही है, द लोन शुड बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन. आपके लिए भी, इसके लिए.
अभी आज के लेक्चर्स का लास्ट टाइम ATU, ये ATU बेटा बिल्कुल आप क्लियरली ये देखिए, ये ATD से जुड़ा है, फर्क बहुत छोटा सा है। यहां पर एक ट्रीटमेंट आप फिजिकली हैंडीकैप डिपेंडेंट, यानी जो टैक्स पेयर है, जो असेसी है, उस पर डिपेंडेंट पर्सन यदि फिजिकली डिपेंडेंट है तो रूल्स ये है, यहां क्या है, फिजिकली हैंडीकैप और कोई नहीं, मैं खुद हूं जो टैक्स पेयर हूं, तब उसको एडिशनल बेनिफिट देने के लिए ये ATU का क्लास बना है। therefore I write here the self physically disabled, मतलब गणित में आएगा मिस्टर मोहन की इन्वेस्टमेंट ये है, मिस्टर मोहन की 80C to ATU फाइंड आउट करो। अब उसमें मोहन के पिताजी, मम्मी, भाई, बहन, लड़का, लड़की यदि कोई डिसेबल है वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आगे जाके बोलता मोहन खुद भी डिसेबल है तो उसके लिए ये एडिशनल है। रूल्स वही है, यदि टैक्स पेयर 40% से कम मेंटली और इवन ब्लाइंड, थोड़ा सा काम पूर्ति अंधा है, मतलब का अंधा है, जैसा मजाक की भाषा में कहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि अंधा है लेकिन सब कुछ काम कर सकता है, मतलब वो ब्लाइंड नहीं है, वो पूरा फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, 40% से कम है, नो डिडक्शन। सर एक टांग गई है, बाकी सब कुछ सही सलामत है, तो 40% से ज्यादा है बट 80% से कम है, सेम रूल 75 का मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो वो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे उन पर खर्चा कर रहा था, यहाँ पर अरे भैया जब बीमार है, खुद ही बीमार है तो खर्चा तो करेगा ना अपने ऊपर में। ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जो बीमार होगा और अपना ही खर्चा नहीं करेगा, वो मूर्खों की श्रेणी में रहेगा, वो टैक्सेबल सेशन का पार्ट भी नहीं। आप उतना दिमाग मत लगाइए। टेक्निकली फिजिकली सेल्फ डिसेबिलिटीज है, अगेन 40% and more but less than 80%, 75,000, and if it is more than 80%, 1,25% will be the deduction. So from today's and earlier lectures, I cover how much section: 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80U। रेस्ट ऑफ कैटेगरी में से 80G छोड़कर बाकी का डिडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।